there will be another sector बता रहा हूँ आपको and chapter. Okay, this is basically financial psychology. Now everybody knows that in the financial in the share market, greed and fear basically works. किसी भी बुक में आप देखोगे तो ग्रीड एंड फियर का ये गेम है, ऐसा बताया गया है. You can take any book on the share market, trading or investment. So you'll see that greed and fear are the two emotions that plays a very important role in the share market. But many people do not understand there is another emotion, that is hope and boredom also. I have not written here boredom, but I have written hope. So hope is another psychological trait or psychological emotion that keeps your trade alive, and instead of losing 2000 you lose 20,000 because you are hoping that market will go up or fall down, whatever. If you have sold it, then you feel that market, and if you have sold it and market is going up, so then you will say that oh my god, why, what this is happening, and then you think that no, market नीचे आएगा, so you are hoping. So hope is another big emotion. So greed, fear and hope. Now when we trade in the market, okay, let me okay, is it okay now? So आप जब ट्रेड करते हो तो देखिए आपका माइंड ट्रेड करता है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. Let me tell you why I am telling you your subconscious mind. Your conscious mind doesn't trade. Your subconscious mind trade. Conscious mind तो कभी भी आपको अलग बताता है. कॉन्शियस माइंड बोलता है कि यार स्टॉप लॉस मेरा लेवल आ गया है, चलो निकल जाओ. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि नहीं, मुझे लॉस नहीं करना है. So whenever you trade in the market, it is your subconscious mind that trades. Now what exactly is the subconscious mind? Your subconscious mind is filled with greed, fear, anxiety, hope, positive attitude, negative attitude, confidence, lack of confidence, and so many things which are called personality traits. These are personality traits. That personality trades in the market. So whenever you trade, every hidden emotion existing in your subconscious mind comes out. Now I am giving the different example here. Now see, this so happens that हम किसी शादी में जाते हैं और शादी में वो ऐसा इंसान आपके सामने दिखता है कि जिसके साथ आपकी जमती नहीं है. सो व्हाट यू डू, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन, बट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल and you want to create your own personality as a good personality, we hide our emotions and we speak with him little. एक शब्द बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे, but we hide our emotions. So any other place we can hide our emotions. बहुत गुस्सा आ गया घर में किसी चीज पर, we hide our emotions. But share market ऐसा market है where you cannot hide your emotions. So every hidden emotions existing your subconscious mind comes out. और ये कौन से हिडन इमोशंस हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड. किसी को लगता है पॉजिटिव, लगता है ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा. किसी को लगता है ये आपके पर्सनैलिटी है, या ये कॉन्शियसली ऊपर जाएगा और कॉन्शियसली नीचे जाएगा, ये बात नहीं कर रहा हूँ. सबकॉन्शियसली बहुत लोगों को लगता है. अभी की स्टोरी ऐसी है कि किसी को भी पूछो, बहुत लोग बोलेंगे यार मार्केट तो गिरना चाहिए, मार्केट तो गिरना चाहिए क्योंकि नथिंग इज गुड. अब ये पिछले 4 महीने से यही कह रहे कि मार्केट तो गिरना चाहिए.
and everybody is waiting. If the market falls down, I am going to buy. But market is going up continuously. Maybe that some people have shorted, but still market is going up. This is because of your personality. Some people are negative, having the negative attitude. And I don't say negative attitude, I will say that मार्केट गिरेगा ऐसा लगता है उनको, या किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमको ये हमारे एटीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है. लेना देना नहीं होना चाहिए. हमने कागज़ पर हमारे ट्रेड्स लिख के रखना चाहिए. ये मेरा बाइंग है, ये मेरा सेलिंग है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, और उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए. सो इफ दिस हैपन्स, देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड ट्रेन अवर सबकॉन्शियस माइंड. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं. वो कैसे कर सके, इसके बारे में मैं आगे मैं बताऊंगा. नेक्स्ट, ग्रीड. Greed is the number one emotion. That greed blinds you to take the entry of buying or selling. The word blind is important. Greed आपको अंधा करता है. किस चीज के लिए अंधा करता है? एंट्री लेने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए. ग्रीड एंट्री के लिए अंधा करता है, एग्जिट के लिए नहीं. इतना ध्यान में रखिए. तो देखो, ग्रिड तो हमारे सब में है, आप में, उसमें, सब में ग्रिड है. अगर ग्रिड नहीं होती तो मैं नौकरी नहीं करता, मैं इतना काम नहीं करता, आप नहीं जाते थे. तो ग्रिड तो है, ग्रिड तो रहेगा. लेकिन ये अगर ग्रिड किसी रूल के बेसिस पर है तो देन इट इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड इफ दिस greed is there without following the rules, then it is a gambling. So you have to decide first whether you are a gambler or you are a professional trader. You have to decide, you have to ask yourself. If you ask yourself and your mind says, no, I am a professional trader, then what? Greed should not overpower you. Instead, रूल्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप उसको ग्रिड को यूज़ करो, एंड देन यू कैन मेक मनी. बट ग्रीड बहुत बार कैसे होता है, मार्केट धड़ ऊपर जाने लगता है और इमीडिएटली अपने को लगता है कि यार मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, तो चलो हम बाय करते हैं. और वो ऐसा जाता है ऊपर, और जैसे ही आप बाय करते हो वो रुक जाता है और नीचे आ जाता है. तो ये ग्रिड के वजह से हमने क्या किया, एक एंट्री ले लिया है. जैसे कि एग्जांपल, आज के ही हम एग्जांपल देते हैं. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं. सो आई विल गिव सम एग्जांपल्स आल्सो so that you will understand. ये 10% ऊपर उठा था कल कंटिन्यूसली. पिछले 5-6 दिन में, 5-6 भी नहीं, 3-4 दिन में वो इतना ऊपर गया कि कुछ पूछो मत. ऐसा दिया था. आज भी उसने कैसे किया, आज एकदम ऊपर चला गया 407, और 407 से एकदम नीचे आ गया. तो ग्रिड के वजह से बहुत लोगों ने यहाँ पर पैसे गंवाए हैं. 9:09:44 में जैसे ऊपर गया, बहुत से स्मार्ट, जिनको जो खुद को स्मार्ट बोलते हैं, इन्होंने पैसा यहाँ लगाया बुलिश में. देन मार्केट हैज फॉलन. सो यहाँ जो जिन्होंने बाय किया, सम पीपल हैव बॉट बिकॉज ऑफ द ग्रिड. तो ग्रिड के वजह से हमारी तो टेक्निक ऐसी है कि 9:30 पौने 10 बजे तक जो मार्केट ऊपर जाता है, कॉन्ट्रारियन थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. और वहाँ से
10 में से 8 ट्रेड्स गिरते हैं, अभी देखो क्या होता है। तो सो यू शुड नॉट टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन द ग्रिड, देयर हैज़ टू बी सम रूल्स, और रूल्स में अगर दिखता है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन टेक द ट्रेड। सो टेक एज मच टाइम एज यू लाइक फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए जितना टाइम लेना है लीजिए। यू हैव टू ऑब्जर्व द रूल्स, इसके लिए जितना टाइम लेना है लीजिए। बिफोर टेकिंग द इनिशियल ट्रेड, जब तक आपके पास में तीर है, मतलब तीर जब तक छूटा नहीं है तब तक वो आपके हाथ में है, पर एक बार तीर छूट गया तो आपके हाथ से निकल जाता है। फिर दो ही चीज़ है, एक तो लॉस करो या प्रॉफिट करो। लेकिन जब तक तीर तुम्हारे हाथ में, तब तक जितना एनालिसिस करना है उतना एनालिसिस करो, लेकिन ग्रिड के वजह से ट्रेड मत करो। आई होप you understood the meaning of greed. Now, hope, I have already explained you, hope without rule is again the gambling. मेरा कहना ऐसा ही है कि आप गैम्बलिंग मत कीजिए। इफ़ यू आर होपिंग दैट, अभी किसी ने बाय किया और वो इफ़ इज़ होपिंग, इसी एग्जांपल में देखो, यहाँ पर किसी ने बाय किया है, इज होपिंग, और मार्केट गिर रहा है और इज होपिंग दैट मार्केट विल गो अप। बट देखो भैया, ये लो आया था 385 और यहाँ था 408। 385 और 408 का कितना हो गया? 5 और 8 13 रुपया। 13 इंटू 3000 का लॉट है अगर फ्यूचर्स में करते हो तो। 13 इंटू 3000 कितना हो गया? 50,000, 49,000, सॉरी 39,000। इज इट ए स्मॉल अमाउंट? 40,000 का आप झटका खा पाओगे फ्यूचर्स में? It's a huge loss. It's a very huge loss, very big loss. So you have to be very clever ये ट्रेडिंग करते वक्त। ग्रिड, मैक्सिमम लोग ग्रिड के वजह से तो फंसते हैं। तो यू शुड नॉट गिव मोर वैल्यू टू द ग्रिड। हाँ, वो रूल के हिसाब से है तो आप कर सकते हो, और रूल के हिसाब से तो यहाँ सेलिंग है, हमारे रूल के हिसाब से सेलिंग है। कॉन्ट्रा इन थ्योरी में जो मैं सिखाता हूँ ना, ये सेलिंग है। सो fear blinds you to take the exit. जहाँ blinds, I am more important, placing more importance to the blind word पर, वो अंधा करता है फियर। और फियर्स कौन से रहते हैं? फियर रहते हैं, फियर विथ रूल्स इज अपॉर्चुनिटी। रूल्स के साथ आप फियर है तो फियर तो बुरी बात नहीं ना, वो तो चाहिए ना, फियर तो चाहिए अगर अपने अगेंस्ट में जा रहा है। सो दैट फियर विथ रूल्स इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोजिंग द ट्रेड। अब फियर कौन से आते हैं? वंस द ट्रेड इज टेकन, एक बार ट्रेड ले लिया कि द फियर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड टर्निंग इनटू लूजिंग ट्रेड इज द नंबर 1 फियर। प्रॉफिटेबल ट्रेड टर्निंग इनटू द लूजिंग ट्रेड। बहुत लोगों को कैसे लगता है कि फियर तो तब आएगा तब मैं लॉस में रहूँगा। नो फ्रेंड्स, जब आप प्रॉफिट में रहोगे ना तो तब ज़्यादा एक्यूट फियर रहेगा, ज़्यादा एक्यूट रहेगा वो फियर, ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट को क्या बोलेंगे हिंदी में, ज़्यादा पावरफुल रहेगा। एंड लूजिंग ट्रेड विल स्ट्राइक द पैनिक। तो प्रॉफिट ट्रेड में भी फियर आएगा, और लूजिंग ट्रेड हो गया तो पैनिक आ जाता है। अब पैनिक आ जाता है एंड वी टू स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, रिमेंबर प्राइस विल आइदर गो अप और गो डाउन और साइडवेज। इतना ध्यान में रखिए। अभी आपको देखना है, क्या देखना है कि हियर यू हैव टू थिंक एज ए चेस प्लेयर।
चेस प्लेयर क्या करता है, हु इवेल्युएट्स हिज पोजीशन एट एवरी मूव. ही थिंक दैट मार्केट इज हिज अपोनेंट. मार्केट जैसे ही खेलता है ये अपने मूव्स वैसे वैसे चेंज करता है. कभी क्रिकेटर को, आई मीन सॉरी, चेस प्लेयर को कभी देखा है कि 10 मूव्स के पहले मैंने यार ये घोड़ा इस जगह के बजाय इधर लगा रखा है, या मेरा क्या बोलते हैं उसको, रुक इसके यहाँ पर लगाने के बजाय मैंने दूसरे जगह पर लगा, तो वो रोते नहीं बैठता है. अदरवाइज वो खेल नहीं पाएगा. वो बोलता है कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज नाउ, अभी कौन से अपोनेंट ने रुक कहाँ रखा, हाथी कहाँ रखा, घोड़ा कहाँ रखा, और उसके हिसाब से वो खेल शुरू करता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक व्हाट इज मोस्ट लाइकली नाउ इन द करंट सिचुएशन and which is most probable under the given rules. So fear के वजह से पैनिक क्रिएट करके क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं. और सबसे पहले तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को इमीडिएटली क्लोज नहीं करने चाहिए, इसको हमको ट्रेल करना चाहिए. तो फियर, आई होप दैट यू अंडरस्टूड. देखिए आप एक ध्यान में रखिए, करंट हाई इज़ नॉट मैक्सिमम प्राइस एंड करंट लो इज़ नॉट मिनिमम प्राइस. बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इसके ऊपर थोड़ी जाएगा ना, अभी तो मैं सेल करूँगा. नो, किसने सोचा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% ऊपर जाएगा 4 दिन के अंदर? 4 दिन के अंदर 30% जाएगा, किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था. ऑल टाइम हाई पर है. सिमिलरली करंट लो इज़ नॉट अ मिनिमम प्राइस. करंट लो इज़ नॉट ए मिनिमम प्राइस. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम हैविंग वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज़ बॉट द एस बैंक 10,000 क्वान्टिटी. एस बैंक ही बॉट एट 250 रुपीज़. 25 लाख का माल लिया है उसने 250 रुपये में. अब उसका हुआ होगा 240. अभी इसके नीचे नहीं जाएगा यार. फिर हो गया होगा 220. अभी इसके नीचे थोड़ी जाएगा. अभी वो 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये चल रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, करंट लो इज़ नॉट ए मिनिमम प्राइस. देर इज़ नो मैक्सिमम रिटेल प्राइस like in medicines, and there is no minimum support price like in grains, food grains. मार्केट में ऐसा नहीं है. देर इज़ नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देर इज़ नो मैक्सिमम रिटेल प्राइस. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस. ट्रेडिंग इज़ नॉट व्हाट यू थिंक. ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क है. ट्रेडिंग इज़ नॉट व्हाट यू थिंक, इट इज़ ए होल पैकेज. इट्स ए होल पैकेज जहाँ पर आप ट्रेंड्स भी देखते हो, और सबसे पहले उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका माइंड देखते हो, मनी मैनेजमेंट देखते हो, अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी देखते हो. सो दिस इज़ अ होल पैकेज. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ होल पैकेज.